اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے شمار درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کے ازواج پر۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی حساس ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہمارا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے، اور میرے عزیز دوستو، اس معاشرے کے اندر جو معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو بڑی تیزی سے پھیلی ہے پچھلے 10 سالوں میں، اس کا نام ہے طلاق۔ اور طلاق ایک ایسا عمل ہے میرے عزیزو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں حلال ہے، لیکن اللہ کو یہ ناپسند ہے طلاق کا دینا۔ لیکن انسانوں کی زندگیوں میں کچھ مقام ایسے آ جاتے ہیں، کچھ موڑ ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ دو انسانوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام نے ایک راستہ دیا ہے کہ آپ پھر طلاق کی طرف چلے جائیں۔ لیکن بے وجہ طلاق لینا، خواہشات کے لیے طلاق لینا، اور اپنی معاشی خوشحالی کے لیے طلاق لینا، یا اپنی کسی اور ضرورت کے تحت خواہش کے تحت طلاق لینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے اسباب یہ ہیں کہ جب کسی بچی کو طلاق ہوتی ہے تو وہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک وقت تھا کہ جب ہم نے کبھی دور دور تک بھی اس طلاق کا نام نہیں سنا تھا کہ معاشرے میں طلاق کیا ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر گاؤں کی کسی ایک بچی کو طلاق ہو جاتی تھی تو پورا گاؤں سوگوار ہو جاتا تھا کہ فلاں کی بیٹی نہیں تھی، وہ ہماری بھی بیٹی تھی، اور سارے ان کے غم میں، ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہ ہونے کے برابر تھی۔ آج میرے خیال سے شاید ہی ہمارے معاشرے کا کوئی گھر ایسا ہو جس میں ایک یا ایک سے زائد بچیاں طلاق یافتہ نہ ہوں۔ اور اس میں ہم مخصوص نہیں کرتے کہ فلاں طبقے کے لوگ ہیں جن کی بچیوں کو طلاق ہوتی ہے، بلکہ اس معاملے کے اندر ہر طبقے کا آدمی متاثر ہوا ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ مکینک ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کو اس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے۔ اور میرے دوستو، طلاق کی جو میرا خیال ہے سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ہے ہمارا اپنی بچیوں اور بچوں کا تربیت نہ کرنا۔ اگر ہم شادی کرنے سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو اس بات کو سمجھایا جائے کہ یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے زندگی بن جاتی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو پھر آپ کو جنت تک لے کے جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عجیب ڈگر چل پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے سب کے حال پہ اللہ رحم کرے کہ آج کا جو مرد ہے وہ گھر سے باہر سکون تلاش کرتا ہے، اور آج کی جو عورت ہے وہ بھی گھر سے باہر سکون تلاش کرتی ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور تمہارے خاوند اور بیوی آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور آپ کا گھر آپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج کا مرد گھر آتا نہیں ہے، اور اگر آتا ہے تو اس کو سکون نام کی کوئی چیز ملتی نہیں ہے، تو وہ باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پھیل رہی ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود لوگوں نے باہر اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ عورتوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور مردوں نے عورتوں کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بیماری تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا یہی ہماری تعلیم ہے؟
क्या यही हमारी तरबियत है? और क्या हमारा मजहब इसी चीज की इजाजत हमें देता है? बिल्कुल नहीं। वो मुआशरे जिनके अंदर फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाते हैं, वो मुआशरे कभी भी नहीं पनपते, वो मुआशरे कभी भी नहीं फलते फूलते। मेरे अजीजों, आज की हमारी जो पढ़ी लिखी यूथ है, वो हमें बार बार मगरिब का इशारा करती है और अमेरिका का इशारा करती है, स्कैंडिनेवियन कंट्रियों का इशारा करती है कि वहाँ देखें जी औरत को कितनी आज़ादी है, उनकी कितने हकूक हैं। जबकि आप उन औरतों से जाके पूछें तो वो माथे पे हाथ रख के रोती हैं, और वो इतना रोती हैं कि कोई हमारे ऊपर तरस करे। हम माएँ हैं लेकिन बीवियां नहीं हैं, हम बेटियां हैं लेकिन बाप नहीं है, हम बहनें हैं लेकिन भाई नहीं है। और उनकी जिंदगी, गवर्नमेंट उन बच्चों को पालती है, वो बड़े होके क्या करते हैं उनकी मर्जी है, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको एक ओल्ड होम में छोड़ दिया जाता है। तो ये कोई जिंदगी जिंदगी नहीं है मेरे दोस्तों। आप अगर उनकी आज़ादी की मिसाल हमें देते हैं तो वहां पे तलाक की रेशो सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स रेशो यूरोप के अंदर है। और उसकी वजह क्या है, क्यों वहां पे तलाकें होती हैं? और वहां पे आपको पता है कानून है कि अगर कोई लड़का लड़की बगैर शादी के रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, और वो 2 साल 4 साल 6 साल वो इस बुनियाद पे इकट्ठे रहते हैं कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, और हम जब एक दूसरे को समझ जाएंगे तो फिर हम बाद में शादी करेंगे। भाई आपने 8 10 साल साथ गुजार के शादी की है, फिर डिवोर्स क्यों हो गई? फिर भी उनकी डिवोर्स हो जाती है। 5 5 7 7 साल इकट्ठे रहने के बावजूद जब वो शादी करते हैं तो फिर उनकी साल 2 साल के बाद डिवोर्स हो जाती है। तो ये जो बात है ना कि आज़ादी उनकी उनकी आज़ादी किसी काम की नहीं है। उनकी आज़ादी ने उनका मुआशरा बर्बाद कर दिया, और उनकी औरत के ऊपर जो इस वक्त जुल्म हो रहा है वो हमारी औरतें सोच भी नहीं सकती। जो हमारी औरतें हैं मुसलमानों की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत से नवाजा है कि वो सोच भी नहीं सकती। उनके जिम्मे सिर्फ एक ही काम है कि वो चार दीवारी में रहें और अपने बच्चों का नफका पकाएं, खाना पकाएं, कपड़े धोएं, इस्त्री करें, घर की साफ सफाई करें। नफका उनके जिम्मे नहीं है। इस्लाम में नफका मर्द के जिम्मे है कि वो कमा के लाए, रिज्क हलाल की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। लेकिन मगरिब में, अमेरिका में या दीगर दुनिया में ऐसा हरगिज नहीं है। सुबह वो बेचारी 4 बजे मजलूम औरत उठती है, 6 बजे उठती है और अपने बच्चों को उठाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है, खुद गाड़ी में बैठती है, ड्यूटी पे चली जाती है, और गर्मी और सर्दी का उनको एहसास नहीं होता, वो अपनी ड्यूटी पे जाके बराबर खड़ी हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, हमारी औरतें तो बड़ी खुश नसीब हैं इस हवाले से कि उनके ऊपर नफके की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर अपनी कोई खुशी से कोई औरत काम करना चाहती है, मसलन कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई आलिमा है, कोई हाफिजा है, तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, वो जाए और अपनी ड्यूटी करे। लेकिन उसके अंदर भी जो जिम्मेदारी है नफके की, जो मेन फोकस है वो मर्द के ऊपर ही है। औरत के ऊपर कोई फर्ज नहीं है नफका कमा के लाना। औरत सिर्फ अपनी नस्ल की तरबियत करे। तो मेरे दोस्तों, इसकी एक वजह तो ये है कि हम लोग तरबियत से खाली हो गए हैं, और जिन माशरों में तरबियत ना हो वहां पे फिर फैमिली सिस्टम जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब से ये सेल फोन आए हैं ना, इन्होंने भी मियाँ बीवी और बच्चों के दरमियान एक खलाप डाल दिया है। हम एक ही कमरे में बैठ के अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन टाइम नहीं देते, ना बीवी को, ना बच्चों को, ना बच्चे हमें देते हैं, ना बीवी मर्द को टाइम देती है, ना मर्द बीवी को टाइम देता है। बस अपने अपने सेल फोन पे लगे हैं और अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। और हमें इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर हम इससे बाहर नहीं निकलते तो फिर मेरे अजीजों, ये जिंदगी में जब गैप आता है तो फासले बढ़ते हैं, तो जिंदगियां टूट जाती हैं और बिखर जाती हैं। और इसके अंदर एक बात ये भी याद रखें कि एक बाप जब अपने 10 साल 12 साल की मेहनत से अपनी बेटी का जहेज बनाता है, शादी करता है, तैयारी करता है, और जब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी को खुदा न खास्ता डिवोर्स हो गई है, तो वो बेचारा जीते जी मर जाता है। एक तो उसकी वो जमा पूंजी जाया हो गई जो उसने सारी जिंदगी लगा के कमाई इकट्ठी की। फिर उसको ये फिक्र होता है कि अब इस बच्ची को मुआशरे में दोबारा कोई लेगा नहीं,
और फिर उसके ऊपर दूसरा फिक्र माश का, कि अगर मुझे इसकी शादी करनी है तो फिर मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, और जो मोहल्लेदारों की, रिश्तेदारों की तानो तशनी है वो अलग से बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला सब की बेटियों को अपने अपने घरों में अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला इस लानत का हमारे मुआशरे से खात्मा फरमाए। मेरे अजीज़ों, तलाक एक मसला अपनी जगह पे है। उस तलाक के बाद क्या होता है, अक्सर बच्चियां जो होती हैं वो उनको अल्लाह ने औलाद की नेमत से भी नवाजा होता है। और आज आप हमारे कोर्टों में जाके देखें, आप अपने शहर के किसी भी सिविल कोर्ट में चले जाएं, आपको सबसे ज्यादा जो केस मिलेंगे वो तलाक और खुला के ऊपर मिलेंगे। और वहां पे मर्द हर महीने आता है और वो उन बच्चों को 1 घंटा आधा घंटा देखता है, उनको खर्चा देता है और चला जाता है। और बच्चों की और माँ की और बाप की सारी जिंदगी कहाँ गुजरती है? कोर्ट में, जिससे वो जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तलाक जो है दुश्मनी में बदलती है, और फिर हत्ता के नौबत कहीं तो कत्ल गारत तक भी बात चली जाती है। अल्लाह हम सब को महफूज रखे। तो मेरे अजीजों, उन बच्चों की जिंदगी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, अपनी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तो अपने बच्चों की शादी करने से पहले बेटियां हो या बेटे, उनकी अच्छे से तरबियत करें, उनको गाइड करें और उनको दोस्तों की तरह गाइड करें। अगर आप उनको दोस्तों की तरह गाइड नहीं करेंगे तो यकीन करें बाहर वाले जो उनके दोस्त हैं वो उनको गलत गाइड कर देंगे। तो बजाय इसके कि बाहर वाले दोस्त उनको गलत गाइड करें, आप उनके अच्छे दोस्त बन के और उनको सही गाइड करें। और वैसे भी जब बच्चे जवान हो जाएं तो माँ बाप की उनसे दोस्ती हो जानी चाहिए, और उनके अंदर बिल्कुल एक फ्रैंकनेस और दोस्ताना माहौल होना चाहिए, तकल्लुफात नहीं होने चाहिए। और ये भी एक वजह है हमारे मुआशरे में नई नस्ल के बिगाड़ की, कि माँ बाप और औलाद में गैप बहुत आ जाता है। बच्चे जो माँ बाप से कहना चाहते हैं, माँ बाप वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। ये भी एक वजह है। तो अपने बच्चों की बात सुने, बच्चा छोटा है या बड़ा है, वो अपने दुख और दर्द और अपने दिल की बात सबसे पहले घर आके अपनी माँ को सुनाना चाहता है। और अगर उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनेगी, फिर वो बाप की तरफ जाएगा। अगर बाप भी उसकी बात नहीं सुनेगा, फिर वो बाहर जाएगा और किसी और को सुनाएगा। फिर वो जो सुनेगा उसको वो गलत गाइड करता है या ठीक गाइड करता है, वो उसके ऊपर है। फिर बच्चे के जहन को खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बच्चे का जहन बिल्कुल एक साफ किताब की तरह होता है। उस पर जो भी लिखेंगे वो किताब का हिस्सा बन जाएगा। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, और अल्लाह ताला हमारे माशरे से इस लानत का खात्मा फरमाए। मेरे अजीजों, ये एक ऐसा अमल है जिसने खानदान उजाड़ दिए हैं। मुआशरों के पूरे पूरे मुआशरे उजड़े पड़े हैं। यकीन करें, आप अगर अपने मुल्क में हैं तो अपने इर्द गिर्द देखें, और अगर आप अपने मुल्क से बाहर हैं तो वो मुआशरों को देखें जहाँ पे फैमिली सिस्टम टूट गया है। वो तरसते हैं कि काश कोई हमारी फैमिली हो, काश कि मेरा बाप हो, मेरे भाई हो, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो। उनके पास सब कुछ होता है, नहीं होते तो उनके पास ये रिश्ते नहीं होते जो इंसान की जिंदगी में तस्कीन का जरिया होते हैं। और आज हमारे यहाँ भी फुकदान होता जा रहा है इस बात का, कि थोड़ी थोड़ी बातों पे फैमिली सिस्टम जो है हमारा रेजा रेजा होता जा रहा है। और अल्लाह हमें समझ के इस सिस्टम को, इस निज़ाम को जो इस्लाम ने और जो अल्लाह ने हमें दिया है, हम अल्लाह की दी हुई किताब को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें कि अल्लाह हमें कैसे ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है, तो उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियां भी ठीक हो जाएंगी, हमारे मुआशरे भी ठीक हो जाएंगे। और मेरे दोस्तों, जो मुआशरे अल्लाह और उसके हबीब को छोड़कर अपनी जहनी इख्तरा पे और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वो मुआशरे हमेशा तबाह हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बनाए, और अल्लाह और उसके हबीब के बताए हुए तरीक़ों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हमारे मुआशरे से इस तलाक की लानत का खात्मा फरमाए, और जो तलाक के बाद के मसाइल हैं, अल्लाह करे वो किसी के सामने भी ना आए। तो मेरे दोस्तों, उससे सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं,
जो सारी ज़िंदगी कोर्ट के चक्कर और कचहरियों के चक्कर में रुल जाते हैं, तो इससे उनकी ज़िंदगी पर बहुत बुरे असरात आते हैं। अल्लाह हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।